So, hello Pankaj, hello Pokhi, हेलो। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। हम लोग ये स्पेशल सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वी आर हियर टू टॉक अबाउट द बुक प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर। दिस इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल बुक इन कलटकाव एंड इवन दो दिस बुक हैज़ बीन रिटन इन 1999, 26-27 ईयर्स अगो, बट हम लोग इसको आज भी पढ़ते हैं और हर किसी को रिकमेंड करते हैं कि वो ये बुक पढ़े। सो आज के सेशन में वी विल जस्ट टॉक अबाउट वाई दिस बुक मैटर्स टू अस, what we have learned, what we recommend others to learn from this book, and yeah, have fun also. Great. Yeah. All right. So before we deep dive into the concepts written in the book, Poki, how about you share your first interaction with this book, how you jumped into this, and what made you read it, or and how was your experience? So I think my first memory of pragmatic programmer was when I joined Kaladkau, and it was back in 2018. And at that time, I think I was just coming out of college, and my main target was, and my main belief about myself was that I can't code like the people are doing in the industry. So there is a lot I need to cover, and for that I think Pratik suggested this book, and yeah, I started reading it hoping that this will change me, that my code quality will improve, or I'll start writing code that will be bug free. All those things were there, and but when I started reading it, it was not what I had expected. So I was expecting that it will talk about some oriented principle, and maybe some concepts of database that I was missing. But instead, in the book, they were talking about boiling a frog, or some soldiers visiting a village have nothing to eat and they are cooking soup out of stones. So I that uh, felt a bit weird, that how I'm going to be a better coder from these. So I tried to read a few chapters, but I think gradually, because what I was looking for was not there, so it kind of uh, dropped, and I couldn't complete the book entirely in my first go. So that was the experience, my first experience. That's an interesting uh, insight, and also I'm not sure demotivating for people जिनके लिए हम बोल रहे हैं कि उनको पढ़नी चाहिए एंड यूर सेइंग कि नहीं हुआ, तो उसके बाद कुछ चेंज हुआ क्या? I think after that, a lot of the years passed by, and I picked up the book again. I bought it again a few months back again, and one of the realization was, I didn't read the book completely, but because this book is so ingrained in Kaladkau, that all the concepts that were there, I was practicing it because someone was telling me. So when I was reading, for example, Tracer Bullet, I know that okay, this is how we do. We don't just develop it like we'll fix the requirement first, or we'll do the designs completely. We pick one feature and do it end to end, which is what I find in Tracer Bullet. So in a way, I was getting it from others, and I think now when I read it, I can relate to a lot of the things and I can understand it. So I didn't read it directly, but Colored Cow kind of was telling me the book every day. एक्चुअली ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एक बारी में बुक उतनी समझ में नहीं आई. सो लाइक यू सेड दैट दिस बुक रिक्वायर्स सम हैंड्स ऑन ऑल्सो, राइट? लाइक यू हैव टू डू समथिंग, कीप डूइंग समथिंग एंड देन कीप रीडिंग दिस बुक. तो एक बारी में ऐसा नहीं है कि बुक पूरी समझ में आ जाएगी. एक्चुअली किसी भी बारी में नहीं आएगी. मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जब मैंने पहली बार पढ़ा तो देर वॉज समथिंग कि यार ओ वाओ टाइप से मेरे लिए मोमेंट्स थे उसमें कि अच्छा ऐसा भी होता है. Yeah. जब मैंने उसको सेकंड टाइम पढ़ा 1 साल के बाद, तब फिर से लगा. और इवन मैं जब आज पढ़ता हूँ तो आज भी वो मुझे ओ एंड अच्छा वाले मोमेंट्स आते हैं कि मैं तो ये मिस कर रहा हूँ, या हम लोग
एज अ टीम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट अलॉट. अगर इस पे करेंगे तो इससे और हम लोग बेटर सॉफ्टवेयर बना पाएंगे. सो आई थिंक इन दैट परस्पेक्टिव यस कि when I read it again and again, every time मेरा एक mindset different होता है, क्योंकि I think throughout these years मेरा job role, the work that I'm doing, it's also evolving. So that thought process and जिस thought process में book पढ़ता हूँ, इससे takeaways लेके जाता हूँ, वो change होते रहता है. सो आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि यार आप जैसे जैसे काम करोगे आपको पढ़ते रहना चाहिए. ये दिस बुक इज़ नॉट अबाउट थ्योरी कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, है ना. राइट. अगर मैंने पढ़ ली होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो रिपीटेड मिस्टेक्स हुई वो शायद मेरे को पहले समझ आ जाती. हाँ. क्योंकि वो अब एक्सपीरियंस से पता चली, जब कुछ गलती हुई किसी ने बताया, और देन इन द एंड इट वाज अ प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर्स प्रिंसिपल जो कहीं पे मेंशन था. सो वो एक चीज़ मुझे लगती है कि जो स्टार्टिंग में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, उससे आई थिंक वो थोड़ा सा डिले हो गया उसमें करने में, बट द रियलाइजेशन इज़ देयर एट द एंड. मुझे ये बुक जब भी मैं पढ़ता हूँ तो जब पढ़ लेता हूँ ना तो उस टाइम तो फीलिंग आती है कि बिल्कुल अब सब कुछ समझ में आ गया और हम लोग कर लेंगे. मेरे साथ एक मूवी के साथ भी ऐसा होता है कि जब जो सोशल नेटवर्क मूवी है जकरबर्ग पे बनी है, मैं जब भी देखता हूँ उसको उसके बाद मुझे लगता है कि अब अगला फेसबुक तो अब मैं ही बनाऊंगा करके. सो वो मोमेंट्स आता है मुझे इस बुक से भी कि फीलिंग आती है. एंड देन आफ्टर सम टाइम देर इज़ अगेन अ रीज़न आई एम रीडिंग दिस बुक. सो दैट इज़ द मैजिक अबाउट इट कि यार 25 साल पहले टेक वर्ल्ड वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. इंटरनेट वैसे अवेलेबल नहीं था, टेक कुछ और था, बट स्टिल दिस बुक हैज़ अ लॉट ऑफ रिलेवेंसी. हाँ, अभी जितनी बार भी पढ़ो देयर इज लॉट टू लर्न, देयर इज लॉट टू, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसका आंसर समहाउ इस बुक में मिल जाता है फ्रॉम अ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. What about you? How was your first experience from this book? Or especially, what was your mindset before you were reading this book and after you read it? तो मैंने कलर्ड काउ ज्वाइन करी 2016 में, 15-16 के आसपास, और आज से 10 साल पहले. तो और मैं बहुत ही क्लियर था कि मुझे टेक में करियर बनाना है. और तो जो टेक था मेरे लिए वो कोडिंग थी उस टाइम पे. तो जितनी बार भी जब से मैं प्रतीक से मिला, केडी जो मेरे मेंटर थे, तो जब भी उनसे कोई डिस्कशन करता था, जब भी उनसे, तो समहाउ दे ऑलवेज मेंशन अबाउट दिस बुक कि यार प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर में ये चैप्टर है, प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर में ये कॉन्सेप्ट है. तो जब भी डिस्कशन, मैंने कभी इतना, क्योंकि आई वॉज नॉट इनटू द बुक्स रीडिंग एंड एवरीथिंग. और फिर एक दिन ऐसे ही जब मुझे प्रतीक ने फिर से सजेस्ट किया तो मैंने कहा ठीक है एक बार देखते हैं क्या होगा. उससे पहले जो पोखी ने बताया, एक्सपेक्टेशन मेरी भी वही थी कि इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी कि कैसे आप डीएसए प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कैसे डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, या फिर डेटाबेस के कुछ और बेटर फंक्शंस इसमें डिफाइंड होंगे. बट जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो अगेन वो स्टोरीज़ हैं, वो सब कुछ है, वो पढ़ने के लिए सही लगता है. जो मुझे याद है कॉन्सेप्ट, जब मैंने ब्रोकन विंडो पढ़ा था तो आई रियलाइज़ कि यार एक ब्रोकन विंडो कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है घर में, और सेम इन सॉफ्टवेयर में. तो वहाँ से भी पढ़ लिया, बट आई वॉज नॉट रिलेटिंग इट दैट मच. तो 2-3 चैप्टर पढ़े और उसके बाद बस खत्म हो गया. वन डे क्या होता है कि, और जो मुझे लगता है सबके साथ ही होता है, कि मैंने कुछ कोड करा, कुछ फीचर डिप्लॉय करा, और मुझे टेस्टर से फीडबैक आता है कि ये नहीं चल रहा, और प्रोडक्शन पे नहीं चल रहा. और मैंने कि मेरे सिस्टम पे तो चल रहा है. और उसके बाद जो हमारे डिस्कशंस हुए, तो मैंने समहाउ उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि जो मेरे और उस टेस्टर के बीच में डिस्कशंस थे, वो सेम डिस्कशन इस बुक में मेंशन है इन ए सेक्शन कॉल्ड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कोड. तो वहाँ से मैंने इस बुक को लिंक किया, और तब से तो ये बुक मेरे लिए बाइबल ही है. जब भी कहीं प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ होता है, आई कीप रीडिंग इट अगेन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. So I think that was my experience. What about you, Evo? So मेरे लिए भी सेम ही था. Like I picked up this book quite late. मेरे पास और बुक्स थी, other books that we consider very fundamental in Colored Cow. So as a programmer I read this book quite late, but वहाँ पे I was able to make resonance. I think जो मेरे लिए अभी तक most resonating point या section रहा है इस book में, that was care for your craft. And reading that point I
इंस्टेंटली कनेक्टेड इट टू माई सेल्फ. सो मैं एज अ प्रोग्रामर या जैसे भी मैंने स्टार्ट करा अपनी जर्नी, आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट कि मैं जो काम करूँ वो बिल्कुल मक्खन तरीके से चले और बढ़िया तरीके से जाए, उसमें किसी को प्रॉब्लम ना आए. तो उसके लिए मैं बिल्कुल परेशान होता था, मतलब रात रात को जागता था और कुछ भी करके उसको कंप्लीट करना, अगर मैंने बोला उसको कंप्लीट करो. सो जब वो केयर फॉर योर क्राफ्ट आया, उसमें लिखा था, तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि यार जो मेरी फीलिंग थी, कभी जिससे मैं फ्रस्ट्रेट होता था, कभी मुझे समझ में नहीं आता था, उसके लिए वहाँ पे कट टू कट वर्ड्स लिखे थे. मतलब somebody had labeled that feeling that is care for your craft, and it was a realization कि यार वो फीलिंग जो है that is the right feeling to have. सो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया उससे. एंड देन आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद दैट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर वर्क एंड जो भी बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई कुड सी हैपनिंग विद मी एंड अराउंड मी ऑल्सो. सो बट लाइक आई सेड कि मेरे लिए इस बुक पे बार बार जाने का रीज़न हर बार डिफरेंट होता है और हर बार टेक अवेज डिफरेंट होता है. सो इट्स नॉट लाइक अ वन टाइमर बुक फॉर मी. और नॉट जस्ट फॉर अस. तो उस टाइम पे जब मैं ट्विटर पे बहुत कम रहता हूँ, बट किसी एक ने एक बार एक ट्वीट करा था कि यार आप कौन सी बुक रिकमेंड करते हो फॉर डेवलपमेंट, एंड आई जस्ट ड्रॉप दिस बुक एंड देयर आर सो मेनी लाइक्स, so many people were sharing that they also like this book, they are also learning new things around this To book. your tweet? On my tweet. Ah. So that was the only tweet where I got 10-15 likes. After that I didn't come, I'm not active on Twitter that much, but yeah, that also gave me reassurance that yes, what we are doing, there are a lot of people talking about it. Yeah, I'll check out your Twitter profile now and like that again. Yeah, Pankaj AG. नहीं सही है, दैट्स रियली ग्रेट. सो टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो बहुत अर्ली आता है इस बुक में, दैट इज़ अ ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट. एंड द बेसिक थिंग इज़ कि यार वो बिल्डिंग का एग्जांपल देता है कि एक बिल्डिंग में जैसे ही एक विंडो टूटती है एंड नोबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दैट बिल्डिंग, तो वो एक खिड़की से 2 खिड़की बन जाती हैं, 2 खिड़की से 4, उसमें बंदर आने लगते हैं, उसमें जंगली जानवर आने लगते हैं, और धीरे धीरे सारी पूरी बिल्डिंग की सारी खिड़कियाँ टूट जाती हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस theory is they connect it with the software. That same thing happens in the software also. When one thing starts, या एक चीज़ पे आप शॉर्टकट ले रहे हो, then it escalates and you start taking shortcuts in other sections. Your team follows you and then they also start taking shortcuts. So कुछ ऐसा रियल लाइफ में हुआ है, या इज देयर एनी प्रोजेक्ट दैट यू कैन रिलेट टू वेयर दिस हैपेंड, और डज दिस हैपन एट ऑल? I think it happens most of the time whenever we leave any broken window. I think अगर वो है तो फिर ये होगा ही. Recent example भी है कि I think there is a project called IAGS that came recently to us, and उसमें I think we were also experimenting. हम जैसे लारावेल में ज़्यादातर प्रोजेक्ट करते हुए आए, इसमें वी ट्राई टू चेंज द टेक स्टैक ऑल्सो. सो वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, जैसे API किस तरीके से लिखनी है वो वहाँ पर हम इस्टेब्लिश ही कर रहे थे, और वहाँ पर क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं था तो सब ने अपने अपने तरीके से कर दी वहाँ पर. सो एक जगह कुछ हुआ, किसी ने उसको कॉपी करा, फिर कोई दूसरा बंदा आया उसने उसको चेंज करा. सो वहाँ पे स्टेज ऐसी आ गई कि अब समझ नहीं आ रहा कि एरर्स को कैसे हैंडल करें. फॉर एग्जांपल कि फ्रंट एंड में यहाँ पर एरर आ रहा है तो कुछ अलग सा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, एक दूसरी जगह पे एरर आ रहा है तो दूसरा लॉजिक लगाना पड़ रहा है. तो एक जो API सही नहीं बनाई थी या कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करा था, सबने अपने अपने हिसाब से करा, और वो अब इतना फैलता गया कि अब वो जो फ्रंट एंड में कोड लिख रहा है उसे भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कि कैसे हैंडल करूँ इसको. तो आई थिंक एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, बट ऐसी और जगह पे भी कई एग्जांपल हैं, मतलब इसी प्रोजेक्ट में भी. मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था ये, क्योंकि जो ट्रेसर बुलेट है उसमें वी टॉक अबाउट कि यार हमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहिए, या फिर क्योंकि तभी को और क्लैरिटी आती है, एंड देन यू ग्रेजुअली इम्प्रूव थिंग्स. और उसी में जब आप वो ट्रेसर बुलेट सेटअप कर रहे हो तब ये ब्रोकन विंडो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
कि आपने कुछ छोड़ दिया आपने, जब मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी उससे पहले, तो जिस तरह से इस बुक ने उसको एक्सप्लेन करा है कि यार आप कैसे ट्रेसर बुलेट डालते हुए भी अपने, कैसे आप वो कंसिस्टेंट रख सकते हो कि क्या प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, कैसे अपने फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हो कि वो ब्रोकन विंडो ना हो, वो एक मुझे और खूबसूरत चीज़ सो लगी। एक बारी फॉर द ऑडियंस और द लिसनर्स, कैन यू एक्सप्लेन ट्रेसर बुलेट एक बहुत ही हाई लेवल में? सो जो जब आप एक कोई बड़ा टारगेट अचीव करने वाले होते हो, जब आपको कुछ क्या कहते हैं उसे, ट्रेसर बुलेट इज दैट, वो मिलिट्री वाली, मिलिट्री में होती है ना बुलेट, उसको बोलते हैं शायद. हाँ आई थिंक द एग्जाम्पल दैट दे गेव इज कि जब व्हेन यू आर फायरिंग एट अ टारगेट, तो आपको पता नहीं होता कि आपको idea नहीं आइडिया होता नहीं होता कि कि कितना आप- डिस्टेंस है, कितनी वेलोसिटी है, पाथ क्या रहेगा. कितनी दूर हो आप, कि किस अभी हवा किस तरफ चल रही है, Right. क्या रेंज है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ शॉट्स मारते हो हवा में, मतलब आप सिर्फ उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हो विद ट्रेसर बुलेट, और जैसे जैसे आप वो हिट करते रहते हो, जैसे जैसे आप वो टैप करते रहते हो, आपको और क्लैरिटी आती रहती है कि अब मुझे क्या इंप्रूव करना है हर एक फीडबैक के बाद, और वहां से फिर आप वो टारगेट। ट्रेसर बुलेट आई थिंक एक पाथ भी वो छोड़ता पाथ है, दिखाता है, कुछ एक शायद उसमें Smoke ट्रेल, होता है, हाँ कुछ होता ट्रेल है। छोड़ते रहता है. सो वो एक आपकी गन से लेके टारगेट तक एक ट्रेल बना देता है. तो आपको दिख जो रहा है आपको कि- गाइड करती है हाँ। कि आपको और कैसे इंप्रूव करना है अपने Right. नेक्स्ट बुलेट में। देन सोल्जर्स यूज दैट ट्रेल और एंड टू एंड थिंग हम्म, बाकी गोले चलाने को. हाँ हाँ सो ये सॉफ्टवेयर में कैसे कनेक्ट होता है? सो सिंपली कि जब आपके पास क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेके आता है, आपको कुछ उसमें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको नहीं पता कि क्या कब बनाना है, कब कितना मेरा कैसा जाएगा, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपके इंटीग्रेशंस कैसे होंगे वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सो आप धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग करना चालू करते हो, आप एक एंड टू एंड साइकिल पिक करते हो अपने सॉफ्टवेयर की, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सारे बड़े बड़े पीसेस करते हो, और जैसे जैसे आप वो पाथ ड्रॉ कर रहे होते हो अपने आप में, आपको और क्लैरिटी आती है कि आप अगला क्या पिक कर सकते हो क्या, और फिर उसमें आप छोटे छोटे ट्वीक करके अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। हाँ। तो जैसे कि अगर एक फॉर्म का एग्जांपल मैं लूँ, तो उसमें एक फॉर्म को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले मैं इसका यूआई एक तरीके से बनाऊंगा, पूरा पूरा इसको खूबसूरत तरीके से दिखे, सारे बटन्स आए, सारी फील्ड आए, फिर एक दिन बैठ के मैं इसके एपीआईज बनाऊंगा, या उससे भी पहले वैलिडेशन बनाऊंगा. वैलिडेशन बनाऊंगा, और फिर इसको एपीआईज एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लेके आऊँगा, और एरर इस तरीके से होगा, फिर तीसरे दिन इन सबको जोड़ने की कोशिश करूँगा। सो वहाँ पे ना जाने की वजह वो बोलता है कि यार कुछ एक साइकिल पूरी बना लो कि फॉर्म में चले, चाहे कुछ एक फील्ड डाल दो, उसको भेज दो, एपीआई इतनी बना लो कि वो डेटाबेस में सेव करा दे, एक फील्ड सेव हो जाएगी. एक फील्ड सेव हो जाए, और उसको जब आप बनाओगे तो आपको 4 चीज़ें और निकल के आएंगी, है ना, कुछ एरर निकल के आएंगे, वो आपके आगे वाली डेवलपमेंट के लिए एक फीडबैक की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे ब्रोकन विंडो का ध्यान रखना हम्म। एक और खूबसूरत चीज़ है। यस। एक्सप्लेन हाउ इज दैट? सो जैसे पोकी ने एग्जांपल दिया कि यार आप एक फॉर्म बनाओगे और आप उसमें वैलिडेशंस, आप स्कैफोल्डिंग करना चाहते हो कि यार आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन डालोगे कि अगली वैलिडेशन डालना आसान हो, है ना, कि आप स्ट्रक्चर करोगे, फिर आप जो एपीआई लिख रहे हो उसमें आपने लेट्स से ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं लगाया, अभी नहीं लगाया, बट आपको वो चंक्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको वो स्कैफोल्डिंग वहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप डायरेक्टली एक एपीआई कॉल कर सकते हो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी स्कैफोल्डिंग और स्ट्रक्चर, आपने सीधे एक एपीआई कॉल कर दिया और देख लिया कि मेरा फॉर्म सेटअप हो गया। अल्टीमेटली जब तक आप वो काम शिप तभी करोगे जब आपने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाला हुआ है। सो वहाँ पे हम लोग, मुझे लगता है, मोस्टली मिस करते हैं। So talking about broken windows, have you ever faced a project जहाँ पे इतनी सारी विंडोज टूट गई थी कि अब उसको हाथ लगाने में डर लगता था? कोई ऐसा प्रोजेक्ट दैट यू inherited or you ended up creating yourself, where you've realized कि यार जिसने बनाया है उसको they didn't care about the project and it led to all the windows being broke. आई थिंक दोनों ही केसेस के एग्जांपल हैं, एक इनहेरिटेड का भी है और एक जो हमने स्टार्टिंग से ही बनाया था। आई थिंक इनहेरिटेड वाला केस से मैं पहले बता सकता हूँ कि सो एक प्रोजेक्ट है हमारे पास,
ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। उसमें दे जस्ट यूज टू, यू कैन इमेजिन कि कस्टमर जब आते हैं तो उनको डेट्स दिखती हैं कि आप कब इसकी डिलीवरी लेना चाहते हो। अब वो डेट्स किस तरीके से डिलीवर हो रही है, वो कोई फेडेक्स फॉर एग्जांपल आपको शेड्यूल दे रहा है और उसके हिसाब से करना है। तो जिन्होंने इसे पहले बनाया, सो इट वाज यूएस बेस्ड, सो जब भी हॉलीडेज़ आते थे तो इनका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता था फेडेक्स का कि वो उस दिन शिप नहीं करेंगे, तो वो जो चेकआउट पे डेट दिखनी है वो बदलनी पड़ती थी। तो दे बिल्ट द सिस्टम, अब किस रीज़न से करा वो पता नहीं, बट वो पूरी चीज़ उन्होंने कोड में ही डाल दी कि कोई हॉलीडे आएगा तो एक इफ़ लग जाएगा और ये डेट हट जाएगी। सो क्या होता था कि जब भी कोई हॉलीडे आता था, लेट्स से 4th ऑफ जुलाई, तो वहाँ पर एक चेक लगता था इफ़ जुलाई 4th, हार्ड कोडेड डेट्स। स्किप दिस डेट, इस डेट में +2 डेज कर दो या कुछ बट कर दो। डोंट टेल मी द ईयर वाज आल्सो हार्ड कोडेड क्योंकि वो चेक फिर एक ही बार चलेगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ईयर भी हार्ड कोडेड था। तो उस तरीके से था। तो जब हम आए तो हमने भी 1-2 हॉलीडेज़ ऐसे ही करे, कि उसने बताया कि इसकी ये केस आ रहा है, ये हॉलीडे आ रहा है, ये तो हमने वहाँ पे जाके ऐड कर दिए। अब बट 1-2 बार के बाद लगा कि यार ये तो मतलब ये तो चेक पूरी फाइल में हॉलीडेज़ ही लिखा हुआ है अब। सो आफ्टर दैट आई थिंक उसमें अब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ने कि वो केयर फॉर क्राफ्ट भी होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट समझना भी होना चाहिए कि यार ये चीज़ आप कोड में कैसे लिख सकते हो, ये तो एक शेड्यूल है जो कभी भी चेंज हो रहा है। तो फिर वहाँ से वो डिज़ाइन रीडिज़ाइन करा, वो कैलेंडर को बाहर लेके गए, जो आपके हॉलीडेज़ हैं आप यहाँ ऐड कर दो, सो इट्स नॉट इन द कोड, इन द यूआई, और उस तरीके से उसको फिर पूरे तरीके से चेंज करा। तो दैट वाज वन केस वेयर वी गॉट समथिंग इनहेरिटेड जिसमें हम भी फंसने वाले थे, बट वी टुक अ पॉज, वी प्रपोज्ड अ न्यू रीडिज़ाइन एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट। सो लाइक वाज द सॉल्यूशन कि उस पूरी बिल्डिंग या जो भी मॉड्यूल था उसको पूरा स्क्रैप करके फिर से बनाया, या वाज देयर स्टिल स्कोप टू करेक्ट दैट पीस? आई थिंक जो पहले था वो पूरा ही हमें स्क्रैप करना पड़ा। सो इट वाज दैट फिल्दी इन अ वे कि Yes. उसमें उसको फेंकना ही था, उसको हाथ नहीं हाँ लगाना था। हाँ, वहाँ पे मतलब वो हो सकता था कि जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ लॉजिक जो है वो बाद में हम समझ के कहीं दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करा, बट कोड वाज नॉट इन अ स्टेट वेयर इट कैन बी रीयूज्ड। I think some, like, a lot of times these things happen that when you have to decide ki whether it's more feasible to correct it versus to replace it. तो I think broken window की severity के basis पे ये decision लिया होगा. यस यस। On the flip side, and maybe Pankaj, you can tell us about it कि have you seen a project इतना खूबसूरत कि मतलब जो पोकी का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अपोजिट था एक्सपीरियंस कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट? सो जो मुझे याद आता है 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली, बट ग्लिफिक वाज वन ऑफ देम, और वो ओपन सोर्स है। वो हमने स्टार्ट किया था टू टेक रिक्वायरमेंट्स और यू नो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट वो इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने शुरू से ही जो ब्रोकन विंडो है उसका ध्यान रखा हुआ था। और सिर्फ एक वही रीज़न था जो मुझे लगता है कि उसमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि यार हमें वो कोड स्क्रैप करना पड़ेगा या कोई मॉड्यूल स्क्रैप करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रैग्मेटिक हूँ तो जो ऑर्थोगोनैलिटी है का कॉन्सेप्ट है और जो ब्रोकन विंडो का कॉन्सेप्ट है वो उसमें बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रखा है। तो जो जैसे मोस्टली जो हम मिस करते हैं वो यूनिट टेस्टिंग है, कि अगर मैंने एक फीचर बनाया और उसकी एजेंसी है डेडलाइन, आई मिस वन यूनिट केस, है ना, आई स्किप दैट टेस्ट केस बेसिकली। धीरे धीरे वो टीम तक पास ऑन होता है और वो टेस्ट केस टेल होने लग जाते हैं, वो नहीं चलता। उस प्रोजेक्ट में हमने वो शुरू से इन्फोर्स कर रखा था, शुरू से ही सारे जितना भी ऑटोमेशन होता था उस कोड का उसका सब कुछ अपने आप ही होता था, वो इन्फोर्समेंट स्टार्टिंग से थे। और मैंने वो देखा कि अभी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अभी तक वो प्रोजेक्ट आराम से चल रहा है, एंड यू नो हेल्पिंग लॉट ऑफ NGOs. So yeah, I like that project. No, that's great. Talking about
like why this book matters so much in Colored Cow. What do you say कि हम लोग क्यों इतना emphasize करते हैं, या how is it connected to what Colored Cow is trying to achieve? यार इंडिया में ना कंप्लेन बहुत ही डिफेक्टो मतलब एक वो है कि आपको रोड साइड नहीं मिलती, आपको रेस्टोरेंट्स में खाना आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, आप जो भी है आपको हर जगह कंप्लेन। Even in our college we used to complain कि यहाँ तो कुछ यहाँ तो कुछ होता ही कुछ होता नहीं ही है नहीं, ना, हाँ। यहाँ कोई एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे Right. कैसे कुछ होगा। right. तो वहाँ से जो मुझे लगता है कि यार वो कंप्लेन इसलिए होती है क्योंकि किसी ने अपना काम सही तरीके से नहीं करा, है ना, किसी ने कोई शॉर्टकट लिया, किसी ने कोई बेईमानी करी अपने काम से, वो जो ऑनेस्टी है वो नहीं दिखाई अपने काम के लिए। और इंडियन जो आईटी सिस्टम है उसका थोड़ा सा नाम भी बाहर इंडिया में इसीलिए ख़राब है क्योंकि लोग काफ़ी कुछ कंप्लेन करते हैं और वो यही बोलते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो मिस करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है ये बुक वो प्रोवाइड कराती है कि उसमें और क्लैरिटी लाने की कोशिश करती है कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं, वो बेसिक्स क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। और कलर्ड काउ उसी को स्टैब्लिश करना चाहती है कि हम इंडिया में भी ऐसे डेवलपर्स या ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड शाइन कर सकें। नो आई थिंक जैसे जब मैं सोचता हूँ इस बारे में तो मुझे वो भी लगता है कि यार दैट इज़ हाउ सॉफ्टवेयर या एनी प्रोफेशनल पर्सन शुड वर्क, है ना, कि अपने काम से आपको लगाव हो, you care for your work, whatever you are working on, not just software professional but every professional, and you get satisfaction out of it as a human being also. तो मुझे तो genuinely मज़ा आता है when somebody appreciates my work, and I most of the time feels like कि यार मतलब मैंने कुछ exceptional नहीं करा, this is what, because I care, so I delivered from that perspective. It's good कि वो आपको connect हुआ। तो I think उसमें what Pankaj said really matters कि this book tells you nothing new, this book tells you कि यार कैसे काम होना चाहिए। हम लोग बस शिफ्ट हो गए हैं कि वैसे काम नहीं होता, या किसी और को स्टैंडर्ड मतलब कुछ एक लोअर क्वालिटी को स्टैंडर्ड मानने में। हाँ, कोई टाइम पे आ गया, वही एक बहुत बड़ी बात है हाँ। मीटिंग में, हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं। राइट। आई थिंक मुझे कलर्ड काउ के सेंस में वो भी लगता है कि this book takes a very human approach to software engineering. So generally कुछ बग आता है तो we try to see अच्छा ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट हो सकता है या फिर ये यहाँ पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर कुछ गलत यूज़ कर दिया। बट आई थिंक उससे भी पहले जो होता है कि मे बी देयर मस्ट हैव बीन अदर कंस्ट्रेंट ऑल्सो जो वहाँ पर रहे हों। सो रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल वहाँ पे उस वो क्वेश्चन ही नहीं आए जो उस टाइम पे पूछने चाहिए थे, और मे बी तभी यहाँ पे इस बुक में इतनी सारी स्टोरीज दी गई है जो कि नॉर्मल केसेस की है। तो दिस बुक काइंड ऑफ जो मुझे लगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप डेटा स्ट्रक्चर कितना अच्छे से समझ रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट कि वो फाउंडेशनल वो फंडामेंटल्स क्या हैं जो जिसके बेसिस पे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं। सो एंड इन कलर्ड काउ वी फोकस अ लॉट ऑन दैट। क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे एस्टिमेट्स दे रहे हो, कैसे ही विल डिसाइड, क्लाइंट विल डिसाइड कि प्रोजेक्ट कब करना है, कब खत्म होगा, हाउ यू डिसाइड ऑन कॉस्ट, कोलैबोरेट कैसे करनी है टीम में। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस बुक। So working with in projects and working with clients or maybe team members, कभी कुछ ऐसा पुशबैक मिला है on these things कि यार शॉर्टकट लेना इज लेट्स टेक शॉर्टकट्स, वो बात की बात में दिखेंगे, या ऐसे कभी सिनेरियोज आए कि यार वो सोचा था कि बाद में करेंगे और बाद में वही ब्रोकन विंडो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या इट गॉट आउट ऑफ हैंड। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सिनेरियोज हैं, मतलब ये आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। सो आई थिंक इनिशियली जब व्हेन आई वाज इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ माय करियर तो वो होता था कि अब ये डिलीवर भी करना है और इतना ही टाइम है। तो अब पहले हम बस वो अब 3 घंटे और काम कर दिया और किसी तरह डिलीवर कर दिया, या शॉर्टकट्स जैसे तैसे ले लिए और
मे बी क्वालिटी में वो नहीं देखा, वो करके डिलीवर कर दिए. बट आई थिंक इन दिस बुक ऑल्सो जो लर्निंग है कि इवन इफ यू आर टेकिंग दोज ट्रेड ऑफ, मेक द क्लाइंट योर पार्टनर इन दोज. सो यू कैन टेल कि मैं इस अप्रोच से जा सकता हूँ, बट ये ट्रेड ऑफ्स हैं इसके, ये चीज़ें इसमें आपको कम मिलेगी, या फिर आज की डेट पे इतना यूआई बन जाएगा, ये 3 फीचर हम बाद में डालने पड़ेंगे, आपके यूज़र ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. तो वो बात करना बहुत ज़रूरी है. वो समझ आया. Nobody likes surprises, Yes. especially in software. यस, क्योंकि ये केसेस भी हुए हैं कि क्लाइंट ने कुछ बोला कि ये इतने दिन तक चाहिए और करके दे दिया, एंड देन ही आस्क और ये कैसे होगा, एंड यू आर लाइक आपको तो यही चाहिए थे ना, बट ये भी तो चाहिए था. सो इन दोज केसेस इट फेल्ट लाइक कि यार एक तो मैंने करके भी दिया और अब आप कह रहे हो कि आपको ये भी चाहिए, तो इससे तो बेटर था कि आपको मैं पहले ही वो हाईलाइट कर देता कि ये इतना इतना बन सकता है और ये चीज़ें बाद में मिलेंगी. So now we measure, or we take care of these scenarios, especially, or even if they are not avoidable. Yes. Like communication is also actually one thing जो इस book में एक अलग से mention है. So we communicate, or we try to communicate with clients that we are deliberately taking a shortcut, and there is a risk of Yes. seeing many broken windows later on. Yes, recent example with the blockchain project. हाँ. Even though the estimate was not, it was not like कि हमने एक नंबर निकाल दिया कि इतनी कॉस्ट है. हाँ. हमने प्रोसेस में ही उनको इंक्लूड कर लिया कि यार ये कॉस्ट ऐसी जा रही है, आपने ये फीचर भी बोला है, ये डालेंगे तो और लगेगी, एंड द रिजल्ट्स वर दे कम्प्लीटली अंडरस्टूड. एंड आई थिंक वही कोलैबोरेशन की बात है कि यू इंक्लूड क्लाइंट इन योर डिसीजन मेकिंग. Right. So there is also one very interesting topic इसमें stone soup का, है ना? Yes. Do you connect to that in any way? I think I can connect it today even more, because the concept is 3 soldiers. I think they are visiting a village. 1, 2, 3. बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो गया. एंड दे आर वेरी हंग्री एंड दे हैव नथिंग, एंड दे फेल्ट कि उनको खाना, विलेज उनको खाना देगा, बट दे डोंट गेट इट. सो what they do is they just take a pot and they take some stones and they started to boil them. And they put water and they boil them, and when they started to do that, one villager saw them from the window and came out and asked, "Yeah, what are you cooking?" So he mentions that I am cooking this stone soup. It has this ingredient, but it would taste even better if we have some carrots or something like that. So that villager ran to his house and brought some carrots, whatever carrots were there, and similarly more people joined, and each time they kind of asked for more ingredients. एक वो उसमें भागम भाग में सीन है ना, जिसमें वो परेश रावल बोलता है कि इसमें Oh, लाया हूँ ना मैं. हाँ तो कविता बोलता लाया हूँ ना मैं करके, तो वैसे कुछ कि yes, yes. so फिर उसमें कैरेट्स भी आ जाते हैं, उसमें शिमला मिर्च भी, उसमें आलू भी, Yes, in the stone soup. हाँ in the stone soup. In the stone soup. So in that way, in the end, they started with stones, but at the end they removed the stones and they were left with a very delicious soup which the entire village then enjoyed. So the idea that you start with something, you show them the vision. So each time, whenever the villager was coming, the soldier just told them that okay, this is the vision, if you come join me, it will get even more improved. So I think yesterday I had session here, and I was able to connect that I am doing something in my area in the performance engineering, and I had a list of things that I need to do. What Small things. Small thing, and if you look at it, you can say कि ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, भैया बहुत ही इनिशियल फेज में है. बट देन जस्ट द विजन इज देयर, एंड
because of that I am able to share with them. I just shared with them ki if you join me we can build something bigger. So that I think after that a few students came that we want to work more on it, tell us how we can connect. So I think that's kind of how I connect it with my work, and it is in multiple areas as well. Maybe Pankaj, in your area as well, you might have some example. Yeah, so um, I think it's the same thing. When I shared vision of one of my project, let's say when I was working on Sankalp Taru. So initially there was a mobile app and web application and then backend application. So there are so many components, Yeah. and I was didn't know, nobody was didn't have any clarity कि यार कैसे हम लोग integrate करेंगे, कैसे वो करेंगे, मुझे भी नहीं पता था. But I just started very small mobile app. मैंने उससे पहले इतनी मोबाइल ऐप नहीं बनाए थे, बट आई जस्ट स्टार्टेड. और उसमें फिर एक दो फीचर एक बार चलने लगा, और वहाँ से देन आई शेयर किया इसको फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे. एंड आई जस्ट शेयर दो स्टोरीज कि यही मोबाइल ऐप अब हमारी वेबसाइट से भी कनेक्ट हो जाएगी, हमारे बैकएंड से भी कनेक्ट हो जाएगी, और भी यूज़फुल होगी फॉर क्लाइंट, और इस तरह से बनना चालू होगा. और वहाँ से जैसे ही मैंने वो पहला वाला हिंज क्रॉस करा, वो शेयर करना लोगों ने आना चालू करा कि यार अब फिर मैंने कि यार अगर इसके टेस्ट केस हम लोग लिख देंगे तो फिर कुछ वो हो जाएगा, या फिर इसकी एपीआई में अगर मैं कोई टेस्टर भी लगा दूंगा मैं, तो फिर हम उसको ऐप को और इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर सकते हैं. तो वहाँ से फिर कुछ लोगों ने शेयर करा कि ठीक है टेस्ट केस मैं लिख लेता हूँ, ठीक है टेस्टिंग मैं कर देता हूँ इस फीचर की. तो मुझे वो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल था जब जहाँ से मैंने ये देखा कि यार मुझे नहीं पता था कि सही में बन जाएगा. मुझे बस ये पता था कि मोबाइल ऐप इस तरह से जा सकती है जितना मैंने पढ़ा था या सीखा था. और वहाँ से जब मैंने शेयर करना चालू करा, तब पहली बार मैंने एक फुल फ्लेज वो मोबाइल ऐप हम लोगों ने एक क्लाइंट के लिए लॉन्च करी थी. I think in this story, Pankaj, you are the soldier and I'm one of the villagers because I Yeah, you joined me on yes, that. and I didn't know you were in that situation at that time. But I can totally relate when you were telling me कि ये Redux से ये चल जाएगा और ये एक मैंने बना दिया, इसको अब और जगह लगाएंगे. So that thing kind of showed the bigger picture that ये ऐप तो बढ़िया बन के आने वाली है. Yes. Great. So, like we talked about, some of the important concepts and how, like, they are still valid. We are still seeing in projects as we are building them. Now, if we have a moment to, let's say, talk to younger people. Let's say, Poki, you are talking to a younger version of you. Yes. Maybe when you are graduating, and people around you who are graduating, maybe your brother who is in college right now, almost on the same path as you, how would you recommend this book or anything related to it to him? Yeah, I think I would say that don't read it just like to finish it. If you're reading something, try to see how it's whatever work you are doing, how it is applying there. So if you read about dry, ask that question in your dries. Don't repeat yourself principle that is in the book. So try to see if you are able to apply that concept in whatever work you are doing, and if you are not able to find areas where you can apply, at least question them whether it is useful or not. So whoever is available or whoever is talking to you, you can start raising those questions that I read this concept, but is my project very small that it does not need it, or when can I apply it? So hands-on is required thing to do with this book. I think the questions part was missing on my first attempt. I was just reading it so that I'll just learn something and one day I'll apply. But now I read it very differently. So for example, like I was reading requirement bit section in it. So
I'm not just reading it, I'm just trying to applying it with the last GitHub issue that the client has created. So I'm trying to ask the same question that in this book they shared on the particular requirement. So try to apply in whatever capacity of work you are doing. No, I think like from the team also, when who have not read it or accepted it entirely, I think even now in the age of AI, it's even more important कि आपको वो fundamentals पता होना चाहिए, because a lot of times what happens, and I've seen my team members doing it, is कि उनको चैट जीपीटी से कुछ piece of software मिल गया and they just copy and paste it, and it works somehow. And with the growing social media things कि यार जो चल रहा है उसको छेड़ो मत, या जो क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, वो ज़्यादा रिस्की है या डेंजरस है. सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड यू आर पुटिंग इट इनटू योर वर्किंग सॉफ्टवेयर, दैट्स इवन मोर डेंजरस. सो आपको एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए कि आप वो क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, और वो कैसे अप्लाई होगा, विच इज़ अल्टीमेटली केयर फॉर योर क्राफ्ट. Yes. Pankaj, what do you say, like, for your team members, or the people who, let's say, you want them to join you, what would be your message for them around fundamentals? So I also recommend this book in the same way कि यार जो भी बना रहे हैं, जो मुझे लगता है हमने कुछ सेशंस में भी बात करी है कि यार जस्ट राइटिंग कोड फास्टर और वो सब कुछ सही है, बट इट्स अ फन पार्ट, इट्स अ गेमिंग काइंड ऑफ थिंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप कॉलेज से, तो अल्टीमेटली यू विल सॉल्व अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप उसको सही से सॉल्व करोगे, अदरवाइज वो प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व नहीं होने वाली. तो जो पोखी ने या वैभव ने बोला अभी तक, उसी के एडिशन में मुझे भी लगता है कि जब आप ये बुक पढ़ोगे तो यू विल एटलीस्ट रियलाइज, एटलीस्ट नो कि यार एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना चाहिए, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनना क्या चाहिए, और आपको कैसे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सही से इंकलकेट करना है अपने अंदर. तो मुझे लगता है आप भी बुक पढ़ो, बट जो पोखी ने बोला, आई 100% एग्री विद दैट कि आपको हैंड्स ऑन भी होना पड़ेगा. कुछ तो सॉफ्टवेयर आपको लगातार बनाने पड़ेंगे, और सॉफ्टवेयर जब मैं बोलता हूँ तो कुछ तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. वो प्रॉब्लम आप ओपन सोर्स में जाके भी कर सकते हो, जो मैं अपनी टीममेट्स में कि अगर आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है, कलर काउ के भी हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ जाके देखो कि लोगों ने क्या इश्यूज रेज करे, क्या प्रॉब्लम है जो आप अपने कोड से ही सॉल्व कर सकते हो. एंड देन आफ्टर दैट इफ यू विल रीड दिस बुक, you will definitely get a lot of things. Great. I think that's a time to wrap it up. I think we discussed a lot of important fundamentals, at least जो first few chapters में discuss होते हैं, but there are a lot more. We touched upon tracer bullet, we talked about communication, we talked about orthogonality, we talked about, we didn't talk about that boiling frog thing. Yes. So a lot of things are still remaining, so we'll cover them in our next video. Until then, excited to read it again and discuss more on it. Right, thanks for being here. Thank you.